So tell me, how many of you have remembered the whole periodic table? How many of you have remembered the whole periodic table? You can answer. You can answer. So Sri respond. Sri respond. Arpita. Arpita. Yes, sir. Tell, how many elements of periodic table have you remembered? 20. 20. Any other students who have remembered more than 20 elements in periodic table? Sir, I've remembered till 40. 40. Then listen, since this is the first class, I want to know up to which depth you are in. If you'll share this thing with me, then I can help you out. Because in chemistry, remembering all the elements is very important. केमिस्ट्री स्टार्ट होता है यहीं से. अगर तुम लोगों को पूरा पोर्शन याद नहीं रहेगा, पूरा एलिमेंट्स याद नहीं रहेगा, तो फिर तुम केमिस्ट्री नहीं हो पाएगा. बिकॉज दिस इज द फर्स्ट क्लास, so we should discuss on this matter. Getting my point? Getting my point? Yes, sir. Arnav respond. Yes, sir. Arnav respond. Yes, sir. बताओ बेटा, कितना याद रखे हो? Ruchi, how many elements have you remembered? I have remembered up to 20. Up to 20. Ayusha or? Sir, 20. 20. Any other student is there who has remembered more than 20 or 40? Okay. Now I have a trick that you can remember the whole periodic table in 15 minutes. Are you interested to get this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So let's start writing. So how many groups and periods are there in periodic table? 18 groups and periods. Periods are there in periodic table. Yes, sir. 18 groups and 7 periods. 7 So periods. just see. So I'm going to write this groups and periods over here. Is it visible to you? Is it visible? Yes, sir. Okay. So total 18 groups are there. So I'm dividing the whole part or whole periodic table into half. So now with this side I will write 9 columns, and with this side I will write 9 columns also. So I'm drawing the lines or columns.
Now see, these are the group numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and 18. Getting? Say yes. Yes, sir. Yes, sir. So Yes, it sir, is yes, not sir. properly visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now is it visible? Yes, sir. So I'm writing the elements: hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Is it audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So the group numbers are 1 to 18. So the group numbers are 1 to 18, and in Roman number we can write 1A, 2A. So here 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, and 0th group. So this is 2B, this is 1B, and this is 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, and these three are 8. So I'm writing the elements: beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, and radium. Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. Yttrium, lanthanum, actinium. This is AC. Zirconium, hafnium, rutherfordium. Niobium, tantalum, dubnium. Molybdenum, tungsten, seaborgium. Technetium, rhenium, borium. Ruthenium, osmium, hassium. Rhodium, cobalt, rhodium. Iridium, metallidium. Nickel, palladium, platinum. Copper, silver, gold. Zinc, cadmium, mercury. So boron, aluminium, gallium, indium, thallium, carbon, silicon, germanium, tin, lead. Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. Then oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. क्या है सबको दिख रहा है? Yes. हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो मुझे ये कैसे याद है ना? समझ आ रहा है? तो तुम लोग भी मेरे ऐसे याद रखना चाहते हो? हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो मैं तुम्हें हेल्प करूंगा. ये सब ट्रिक्स है और ये सारे चीज तुम्हें भी याद रह जाएगा. जैसे मैं भी लिख दिया डायरेक्टली, तुम लोग लिख सकते हो. लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करते हैं. जैसे तुम लोग जानते हो, ये जनरली ये हमारा एस ब्लॉक होता है. ये दोनों पार्ट जो है ये एस ब्लॉक है. और मिडिल 10 कलम्स हैं, ये है तुम्हारा डी ब्लॉक. डी ब्लॉक. और ये वाला एफ पी ब्लॉक. और एक ब्लॉक जो है वो सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, वो उनको याद रखने का लैंथेनाइड, एक्टिनाइड. यस, लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड. उसके ऊपर लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड कंटिन्यूएशन, लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन, थोड़ा बहुत यूजेस हैं लेकिन उसका याद रखने का जरूरत नहीं है. तो हम लोग सिर्फ ये तीन ब्लॉक का याद रखेंगे, है ना? अच्छा, इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में होते हैं एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में, जनरली दिस आर द मेटल्स. और यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे मेनली नॉन मेटल्स होते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? So the elements present here in S block and D block are the metals, and present in P block are non-metals. But some of the elements in P block are metalloid. क्या तुम metalloid जानते हो?
Have you heard this word metalloid? Yes, sir. Yes, Yes, sir. You can define the word metalloid. Which show both metallic and non-metallic character. Which shows not exactly which has a property which is intermediate between metal and non-metal. Yeah. Getting my point? Metalloid is a substance which has the property intermediate between metal and non-metal. Getting my point? Yes, So, sir. तो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा वो मेटलॉइड कैसे याद रखते हैं. वो मेटलॉइड कैसे याद रखते हैं. क्या तुम बता सकते हो कौन कौन मेटलॉइड है? क्या कोई बता सकता है Germanium. मेटलॉइड क्या है? Say yes or no, then I can help you out. No, sir. Okay. या तब भूलिएगा. So now I'm erasing this B block. तो मैं एक गाना लिखने जा रहा हूँ. ओके, मैं एक गाना लिखने जा रहा हूँ. आंटी तेरी सब्जी पूरी सर ऐसे मैं भी याद किया था फिर भूल गया. 10th क्लास ऐसे याद करके एग्जाम दिया था फिर भूल गया. अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो मैं इसको राउंड कर लेता हूं. मैं यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने राउंड किया. बोरन है ना, सिलिकॉन है, जर्मानियम है, क्लियर हुआ. देन आर्सेनिक है, एंटीमोनी है, टेलुरियम है, पोलोनियम है और आस्टाटाइन है. क्या सबको रेड कलर्ड सर्कल दिख रहा है सबको? हाँ Yes, सर. sir. Yes, sir. गिन के बताओ कितने एलिमेंट्स हुए. गिन के बताओ. 1 2 3 4 5 6 7. So these are the elements. So these are the elements which are metalloids. Getting my point? Yes, तो ये sir. तुम्हें ये वाला लाइन याद रखना होगा. आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी, मतलब आंटी जो सब्जी बनाई थी वो बासी हो गया, है ना. मतलब कल परसों कल का बनाया हुआ था, आज बासी हो गया. सबको समझ में आया? इस लाइन का मतलब समझ में आया? समझ में आया सबको? हाँ Yes, सर. Yes, sir. मैं तुम्हें थोड़ा इससे पहले ये बता दूं क्यों ये सब मैंने बताया. कुछ चीज मैंने खुद डिस्कवर किया, कुछ चीज मेरा कलेक्शन है. तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि जनरली जो फिजिकल केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री में 3 पार्ट होता है. एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Inorganic. गेटिंग माय पॉइंट? तो फिजिकल केमिस्ट्री में प्योरली जो होता है वो कंसेप्चुअल होता है, और ऑर्गेनिक जो है वो भी प्योरली कंसेप्चुअल होता है. इनऑर्गेनिक में कुछ पोर्शन है, जैसे 60 to 70% है जो कंसेप्चुअल है, और बाकी 30 to 40% वो मेमोरी बेस्ड है. तो मेमोरी बेस्ड जब होता है तो हमें याद नहीं रहता है, और एग्जाम में उसी क्वेश्चन आता है. गेटिंग माय पॉइंट? तो एंट्रेंस में क्या होता है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्योंकि वो कंसेप्चुअल है, तो उसमें क्या है, ट्विस्टेड डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन आता है. लेट आई विल से बोर्ड लेवल, नीट लेवल, आईआईटी लेवल, 3 लेवल के जैसे होता है. तो बोर्ड लेवल जैसे क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही आएगा, नीट में थोड़ा ट्विस्टेड होगा, और आईआईटी में बहुत ज्यादा ट्विस्टेड होगा. बहुत ज्यादा ट्विस्टेड का मतलब ये होता है, मतलब वहां पे प्योरली कंसेप्चुअल होगा. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ऑल इफ यू आर लिसनिंग. Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है, बहुत जरूरी है सब जानना तुम्हें. क्योंकि अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर तुम्हारा ये सब केमिस्ट्री नहीं होने वाला है. मैं तुम्हें 2 चीज करूंगा यहाँ पे, है ना. एक चीज है मैं तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, और सेकंड चीज है जहां पे जो चीज थोड़ा बोरिंग लगता है उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग कर लूंगा. जो तुम लोग अपना 10th क्लास में पढ़े होंगे, ये जो पीरियडिक टेबल होता है, ये मेटल नॉन मेटल कैरेक्टर जो होता है, ये सब थोड़ा बोरिंग होता है ना. तुम लोग ऐसा फील किया हो? कौन सा पोर्शन तुम्हें 10th में बहुत डिफिकल्ट लग रहा था? कौन सा पोर्शन? यस, केमिस्ट्री में कौन सा पोर्शन मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, या तो समझ में नहीं आया, जो भी है? अर्नब? सब ठीक था सर, कोई ऐसा हार्ड नहीं था, सब ठीक था, बैलेंस था सब. अच्छा, हार्ड नहीं. हार्ड Balance. वो तो 10th में तो ही होता है.
मतलब ऐसे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, बोरिंग है, मतलब ये पोर्शन थोड़ा याद नहीं रहता था, ये सब वही बोल रहा हूँ। ठीक है, Sir, तो periodic इनऑर्गेनिक में जो चीज बोरिंग है उसमें मैंने सिर्फ पीरियडिक टेबल में नहीं, बहुत सारे चीज में जहाँ पे मतलब गेट बाय हार्ट करना होता है, जहाँ पे याद रखना होता है, जहाँ पे रखना होता है, वहां पे थोड़ा बहुत ट्रिक्स है। कुछ ट्रिक्स मैंने खुद निकाला, कुछ कलेक्शन है ना, तो वो सारे मैं तुमसे शेयर करूंगा। लेकिन तुम्हें रेगुलरली क्लास करना होगा और तुम्हें पूरा वीडियो देखने के टाइम में आगे के जो क्लासेस हो गए मैं उसमें ऑन म्यूट कर दूंगा, मतलब म्यूट कर दूंगा, है ना, तो तुम लोग सिर्फ सुनोगे इसको आज, क्योंकि पहला क्लास है, थोड़ा इंटरेक्शन होना जरूरी है, इसलिए मैंने तुमसे बात किया, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं क्यों 7 बजे स्टार्ट किया, क्योंकि 7 बजे स्टार्ट करने से वो नेट का थोड़ा कंजेशन नहीं रहता है ना। हाँ सही बात है सर, करेक्ट पूरा। हो जाता है, इसीलिए मैं लाइफ में 7 बजे बहुत कम टाइम उठा, ठीक है ना। मैं आज 8:30 बजे उठता हूँ, क्योंकि तुम लोगों का क्लास लूंगा, इसलिए मैं जल्दी उठ गया। ठीक है, मैं 11 बजे उठता हूँ। 11 बजे उठता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर क्योंकि देखो ये लॉकडाउन के टाइम में अगर तुम टाइम वेस्ट कर लोगे, क्योंकि ये लॉकडाउन कब खुलेगा किसी को नहीं पता, जैसे मे 3 खुलेगा या नहीं खुलेगा नहीं पता हमें। अगर खुल भी जाता है तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलने का कोई चांस नहीं, जितना मुझे मतलब अंदाजा आ रहा है, या जैसे मुझे बाकी लोगों से डिस्कस करके यही फील हो रहा है। तो अगर तुम लोग इसको लेट स्टार्ट करोगे फिर तुम लोग लेट हो जाओगे, है ना, क्योंकि बाकी बच्चे भी स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। मैंने इसको स्टार्ट किया और बाकी बच्चे आज भी मतलब टोटल 30-40 बच्चे करने वाले थे, सो गए होंगे आदत से मजबूर, है ना। तो देखते हैं कि रीशेड्यूल करेंगे उसको, या फिर कंफर्टेबल टाइम जोन पे लाएंगे जहाँ पे हम लोग करेंगे। तो बहुत जरूरी है कि तुम्हारा एक टीचर और स्टूडेंट के अंदर ट्यूनिंग बनना। अगर मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं किए, तो फिर हम लोगों के अंदर स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप नहीं हो सकता है। बिकॉज इज द फर्स्ट क्लास, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स। क्लियर हुआ सबको? तो ये पढ़ाई तो हो जाएगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ जब तक पढ़ाई टेस्टियर नहीं होता है तब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं, है कि नहीं। जैसे खाना अगर मम्मी बना दी खाना, अगर तुम लोगों को अच्छा नहीं लगा तुम तो नहीं खाते होंगे, है ना। तो इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि अगर ये पढ़ाई जो है जो टेस्टियर नहीं होगा, जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल होगा मैं तुम्हें समझा दूंगा, जहाँ पे मेमोरी बेस्ड है मैं तुम्हें ट्रिक्स दे दूंगा, तो उसमें क्या होगा, तुम्हें इंटरेस्ट पैदा होगा। अगर इंटरेस्ट नहीं आया तो फिर नहीं कर। और सोचो बाकी तुम्हारे ऐसे बहुत बच्चे होंगे वो अभी भी सो रहे होंगे, अगर तुम इस टाइम पढ़ते हुए तो इस शेड्यूल में और एक टाइम दूंगा, पढ़ते हो तुम ऊपर रहते हो, है ना। जितना ज्यादा पढ़ लोगे उतना ज्यादा तुम्हें फायदा होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स तुम लोग विदाउट डिफॉल्ट पूरा मतलब इन टाइम प्रेजेंट रहना। और मैं इसको प्लान कर रहा हूँ थोड़ा चेंज करने के लिए, क्योंकि 7 बजे कुछ बच्चों के लिए मुश्किल हो रहा है, मेरे लिए भी हो रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर स्टूडेंट टीचर दोनों ऑनेस्ट है ना, तो फिर जो रिलेशन होता है वो लॉन्ग रन चलेगा। मेरे 15 साल पहले की स्टूडेंट भी आज भी याद करते हैं, सर आप कैसे हैं कैसे हो, मैं भी याद करता हूँ। इसलिए क्योंकि मैं ऑनेस्ट रहा, है ना। मैं हमेशा स्टूडेंट के साथ ऑनेस्ट रहा और जो भी सच है वही बोला, और तुम लोग भी मेरे साथ ऑनेस्ट रहोगे। और डोंट यूज द इंटरनेट। जैसे मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बगल में और एक मोबाइल है, पापा का मोबाइल से बात कर रहे हो, मम्मी के मोबाइल से नेट पे गूगल पे सर्च कर ली आंसर ये आंसर। यार नव ये सब काम करता है तो ऐसा करता हूँ कि तुम लोग मेरे से चीटिंग नहीं कर रहे हो और मैं भी तुम्हें चीटिंग नहीं करूंगा। मैं ये टेबल खुद से लिखा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ पे सामने कुछ कर दिया रख दिया और देख के बता दिया। ये सब स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप नहीं होता है। अगर ऐसे होगा तो फिर हमारा आगे की ग्रोथ नहीं हो पाएगा। पूरा क्लियर हुआ सबको? यस सर। क्लियर हुआ, है ना। हाँ, तो कोई टेंशन मत लो, क्योंकि ऐसा है तुम लोग ये बता दूं मैं, 10th में तुम लोग क्या था, कोई आईसीएसई बैच से है, आईसीएसई बोर्ड से है या सारे सीबीएसई बोर्ड से है? क्या कोई आईसीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है ना? तो अगर नहीं है फिर तुम लोगों को बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, आई एम शोइंग यू द मिरर, आई एम शोइंग यू द मिरर। क्योंकि तुम लोग पढ़े क्या पढ़े, एक साइंस का बुक जो इतना पतला बुक है, और उसमें क्या है, फिजिक्स भी पढ़े, केमिस्ट्री भी पढ़े, बॉटनी भी पढ़े, जूलॉजी भी पढ़े, 4 सब्जेक्ट एक बुक में पढ़े, है ना। तो ये जो पार्ट है 11th में, ये मतलब तुम लोग ये फेस करोगे, मिनिमम 10 टाइम्स डिफिकल्ट है, 10 टाइम्स डिफिकल्ट है, ज्यादा पोर्शन भी है ना। जो पोर्शन नंबर ऑफ चैप्टर्स है, जैसे केमिस्ट्री में 11th में 2 बुक है और 12th में भी 2 बुक है, फिजिक्स में भी 2 बुक है, बायोलॉजी में एक करके 2 बुक है, तो ऐसे मैथ्स में भी बुक है, तो बहुत सारे बुक्स हैं। तो तुम्हें इसको देख के डरना नहीं है ना। मैं तुम बोलोगे सर हमें आप जाने से पहले डरा रहे हैं, मैं बिल्कुल डरा नहीं रहा हूँ,
क्योंकि मैं अपना जो मतलब 11th का टाइम याद कर रहा हूँ, जब मैं मतलब 10th से 11th गया, पहले तो वो सिलेबस पोर्शन देख के डर गया मैं, सही में। मुझे कोई हेल्प किया नहीं, है ना। तो मुझे लगा यार इतना कौन पढ़ेगा, इतना मोटा बुक है कौन पढ़ेगा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये बहुत इजी है। तो ये जो है ना, ये इसको मोटिवेशन बोलते हैं, क्योंकि अगर हम एक वॉर पे चलते हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि ओपोनेंट में कितने सोल्जर्स हैं। अगर हमें पता नहीं होगा तो हम लोग सोचेंगे 1-2 हैं तो हम लोग गोली खा के मरेंगे, है ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि मतलब हमें अंदाज होना चाहिए कितना पोर्शन है क्या है। और केमिस्ट्री ऐसा पोर्शन है जहाँ पे ऑर्गेनिक के साथ ऑर्गेनिक एक पैरेलल ट्रैक है, इनऑर्गेनिक एक पैरेलल ट्रैक है, और फिजिकल एक पैरेलल ट्रैक है। तो जब तक इसको समझोगे नहीं, जब तक इसके अंदर इंटरेस्ट होगा नहीं, तब तक तुम्हारा होगा नहीं। इसीलिए छोटा मतलब स्मॉल स्पीच मैंने दिया, है ना। तुम सोचोगे यार क्या सर चीज दे दी आगे, हम तो पेरेंट्स से भी सुनते हैं, नहीं है कि नहीं? अर्नब, ओके। तो लगे यार हम तो पेरेंट्स से भी सुनते हैं, स्कूल से भी सुनते हैं, यार सर भी आके यार दे दे रहे क्या यार, सुबह सुबह मतलब नींद खराब हो गया मेरा, है ना। बेटा मेरा भी खराब हुआ है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, सब नहीं भैया, ऐसा बात नहीं है। हमारा फ्यूचर सही हो जाए। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग Yes, माई sir. पॉइंट। अभी मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बोलने जा रहा हूँ। तुम सोचो, मैं अभी 15 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, लगभग 70 बैचेस ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ा चुका हूँ, क्लियर हुआ। तुम सोचो मैं जो हूँ मतलब बोर्ड लेवल, नीट लेवल, जेई मेन लेवल, जेई एडवांस लेवल का पढ़ाता हूँ। तुम सोचो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा होगा जब मैं तुम्हारे जैसे स्टूडेंट था, कौन बताएगा? केमिस्ट्री केमिस्ट्री तो नहीं रहा होगा सर। केमिस्ट्री नहीं रहा होगा। एनी अदर गेस? मैथ। एनी अदर गेस? चलो जो मैथ बोला नाम बता अपना। कुबेर मैं। कुबेर, तो कुबेर बताया जो है वो सही था, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ। तो कौन मुझे बताएगा सेकंड फेवरेट क्या था? फिजिक्स। फिजिक्स था। थर्ड क्या था? इंग्लिश। इंग्लिश तो ठीक है, आगे बोलो। जूलॉजी था, है ना, जूलॉजी था। जूलॉजी था। हाँ, फिर नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या रहा होगा? मतलब फर्स्ट 3 में केमिस्ट्री था ही नहीं। Botany. नेक्स्ट बॉटनी नहीं था बेटा, ना तो मुझे घास फूस पढ़ना अच्छा लगता है, ना तो खाना अच्छा लगता है ना, समझ रहे हो। तो ये बचपन से मुझे पसंद नहीं घास फूस। जिस दिन ऐसा नहीं कि मैं डेली नॉनवेज खाता हूँ, जिस दिन घर में वेज होता है ना, मन नहीं आता यार, लगता है ब्लैक एंड व्हाइट। सही बात है। ठीक है, मतलब मैं जो लोग वेजिटेरियन है उनको उंगली नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा थिंकिंग है, ठीक है। तो मतलब मेरा पहला था मैथ, उसके बाद था फिजिक्स, उसके बाद था जूलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री और बॉटनी, ऐसे ले सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा सर केमिस्ट्री टीचर कैसे बन गए? थोड़ा इस लॉजिक पे ध्यान दो। मुझे बताओ मुझे मैथ सबसे अच्छा क्यों लगा? बिकॉज आई हैव गॉट ए वेरी गुड टीचर जो मुझे इसके लिए इंटरेस्ट क्रिएट करवा दिए। मतलब यार मैथ बहुत इंटरेस्टिंग होता है, तुम करो। फिर मुझे फिजिक्स अच्छा लगा, तो क्यों अच्छा लगा? क्योंकि फिजिक्स में ऐसे टीचर मिले हो। फिर मुझे जूलॉजी अच्छा लगा, तो ऐसे टीचर मिले हो। फिर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं आने का मतलब यही था कि मुझे ऐसे टीचर मिले ही नहीं। ऐसे तो टीचर के नाम पे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे टीचर जो इंटरेस्टिंग करवा दें, इसको टेस्टियर बना दें, ऐसे टीचर मिले ही नहीं। तो मुझे लगता था, क्योंकि मैं जब मुझे याद है वो आज वो दिन, जैसे मैं पहला दिन गया था केमिस्ट्री पढ़ने गया था, मेरे पापा के साथ गया। पापा बोले बेटा सर का पैर छू। मैंने जाके पैर छुआ, सर नमस्ते, मैं केमिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ आपके पास। तो सर बोले अच्छा केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो एक लाइन याद रखना है बेटा, तब केमिस्ट्री तेरा हो जाएगा। मैं बोला बताइए सर। वो बोले बेटा केमिस्ट्री इज नथिंग बट हिस्ट्री। सबको सुनाई दे रहा है? केमिस्ट्री इज नथिंग बट हिस्ट्री, रिमेम्बर दिस वन, तब वो केमिस्ट्री पढ़ सकता है। मैंने यार वहां पे तो हाँ बोल दिया, अंदर ही अंदर यार पहले तो अच्छा नहीं हो रहा था। अरे रटने का कौन? फिर मेरे पापा को बोला पापा मेरे नहीं हो सकता है। फिर मैंने गाली सुना, क्यों सब पढ़ रहे हैं, तू कौन हो गया? ठीक है पढ़ता हूँ। फिर बीच में कैसे हुआ, मतलब कुछ दिन पढ़ने के बाद फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ डाउट आया, तो मैंने सर से पूछा सर बताइए क्या है, थोड़ा बता दीजिए। मैंने सर बोले ठीक है, मतलब ये जो है जो स्टेटमेंट तो याद रखा है? मैंने बोला सर बिल्कुल याद रखा हूँ सर।
पूरा मेमोरी में यहाँ पे लिख दिया सर मैं, बताइए सर। तो सर बोले क्या याद रखा है? मैंने बोला सर केमिस्ट्री इज नथिंग बट हिस्ट्री। तो सर ने बोले आज से और एक चीज इसमें ऐड करना। मैंने बोला सर बताइए क्या हुआ? केमिस्ट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री एंड मिस्ट्री। केमिस्ट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री एंड मिस्ट्री। तो कुछ मिस्ट्री है, क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन आज मैं ये बोल रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में मिस्ट्री कहाँ से आया? फिजिकल केमिस्ट्री में कोई मिस्ट्री नहीं है क्योंकि वो प्योरली कॉन्सेप्चुअल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई मिस्ट्री नहीं है क्योंकि प्योरली कॉन्सेप्चुअल है। इनऑर्गेनिक में भी 60 to 70% कॉन्सेप्चुअल है। बाकी पार्ट जैसे किसी का कलर क्या हुआ, वो सब हुआ, थोड़ा उसके याद रखना पड़ेगा, तो वो हो सकता है एक्सपेरिमेंटल। तो यार मतलब जब पहली बार मैंने सुना था केमिस्ट्री इज नथिंग बट हिस्ट्री, वहां पे मुझे 70% मन खराब हो गया था। लेकिन जब सुना मैं केमिस्ट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री एंड मिस्ट्री, उस दिन 100% खराब। तो मेरा 2 साल केमिस्ट्री बहुत बेकार गया, है ना। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहला एग्जाम दिया केमिस्ट्री का, है ना। देखो तुम लोग क्योंकि मेरे स्टूडेंट बन चुके हो तो इसलिए मैं ये सब तुम्हारे सामने रखता हूँ। ऐसे मैं किसी को बोलता नहीं हूँ सब, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ। मेरा फर्स्ट एग्जाम हुआ था केमिस्ट्री में, तब आई हैव गॉट 18 मार्क्स आउट ऑफ 50, है ना। और मेरा सबको सुनाई क्या? हाँ सर। 18 मार्क 18 आउट ऑफ 50, है ना। तो सोचो जब वो लड़का जो 50 से 18 रखा था, आज यहाँ तक, या तुम लोग तो मेरे पास पढ़े नहीं हो, कहाँ तक मैं पढ़ा सकता हूँ वो तो देख लोगे तुम लोग। जब 18 से लेके यहाँ तक हो सकता है तो तुम्हारा क्यों नहीं? अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैं ये सब क्यों बताया? तो तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा सर आप केमिस्ट्री टीचर क्यों बन गए? यार मुझे बताओ, तुम लोगों के अगर घर के अगल बगल में 2-4 दुकान है, ऑलरेडी वो सक्सेसफुली चल रहा है, तुम क्या उसी दुकान फिर से कर पाओगे? उसी बिजनेस कर पाओगे? या जो नहीं है वहां पे खोलोगे? सोचो। तो मार्केट में फिजिक्स के बहुत अच्छे टीचर है, जूलॉजी के बहुत अच्छे टीचर है, और बाकी जो है केमिस्ट्री के उतने अच्छे टीचर नहीं थे। तो मुझे लगा यार, मैं बहुत बचपन से बहुत आलसी रहा हूँ, मुझे लगा यार थोड़ा मेहनत से अगर केमिस्ट्री में करोगे तो फिर क्या होगा, और जो है कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आया? और मैंने जो झेला, मैंने जो सफर किया, मैंने जो मतलब केमिस्ट्री के लिए जो प्रॉब्लम हुआ मुझे, तो मैं ये सोचा ये प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा हटा दूं। इसके लिए मुझे क्या किया, मुझे क्या करना पड़ा, थोड़ा बहुत बुक पढ़ना पड़ा, है ना। मेरे पास थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के बुक्स हैं, 200 करके हैं, थोड़ा बहुत, है ना। सुना जाए सबको? थोड़ा बहुत कभी कभी दिखा दूंगा मेरे जो बुक है, वो अभी तो पढ़ने का जरूरत नहीं होता है, मैं वो सेल्फ दिखा दूंगा, है ना। 2 सेल्फ में मतलब पूरा जो वो आयरन वाला नहीं होता है, 4 सेल्फ वाला, 4-8 सेल्फ पूरा भरा पड़ा है बुक का, है ना। आज मुझे पढ़ने का जरूरत नहीं होता है। आज मैं 2-3 महीने में, मेरे पापा बोलते हैं बेटा जाके थोड़ा साफ कर ले, वो बुक के ऊपर बहुत धूल मिट्टी जम गया, है ना, तो मैं साफ कर लेता हूँ, है ना। तो मैंने जब ये पढ़ा तब भी मुझे ये ज्ञान आया, तब ये सारे ज्ञान थोड़ा बहुत तो मैंने डिस्कवर किया, बाकी तो बुक का ही ज्ञान है ना। तो मुझे ये सारे बुक से ही मिला। तो ना तो मैं जीनियस हूँ, ना तो तुम जीनियस हो। क्लियर हुआ सबको? तुम हो सकते हो, मैं तो जीनियस नहीं था, अच्छा स्टूडेंट था। अच्छा स्टूडेंट और जीनियस में अंतर है। क्लियर हुआ सबको? तो जब मैं इसमें पूरा कंट्रोल कर सकता हूँ, अभी मैं एंट्रेंस लेवल का केमिस्ट्री को कंट्रोल कर सकता हूँ, पूरा कंट्रोल कर सकता हूँ। जब मैं कर सकता हूँ तुम भी कर, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, थोड़ा मोटिवेशन तुम्हें चाहिए था। किसी 1-2 स्टूडेंट को नींद भी आ रहा होगा कि सर यार क्या, ठीक है, थोड़ा नींद हटा लो, आगे ये सब ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा हम पढ़ेंगे ही, क्योंकि मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। तुम लोगों का लॉकडाउन में तुम्हारा दिमाग का जो ब्रेन को भी तुम लॉकडाउन कर चुके हो, है ना। रात को 1-2 बजे मोबाइल देख के सोना, फिर 11 बजे उठना, है ना, मम्मी बोले तो मतलब ज्यादा चिढ़ना, ये सब आदत हो चुका होगा, है ना। नहीं वो देखो तुम जो सुना होगा ना, सास जी कभी बहू थी, तो टीचर भी कभी स्टूडेंट था। तो तुम्हारे मन का जो भी फीलिंग्स है, जो भी थिंकिंग, वो पूरा मुझे मतलब मैं वो सब करके आ चुका हूँ, है ना। तो इसीलिए चिंता मत करो, आगे पढ़ते हैं, नहीं तो फिर सोचोगे सर यार फर्स्ट क्लास में मीटिंग ही था, मोटिवेशनल थी, तो हम लोग क्यों उठे, है ना। तो पढ़ लेते हैं, आज के लिए इतना ही मोटिवेशनल थी। तो देखो, तो यहाँ पे मैंने जो सबको दिख रहा है अभी, यस सर, ओके। तो आई हैव
राउंडेड दिस एलिमेंट्स बोरन, सिलिकॉन, जर्मानियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम, पोलोनियम, आस्टाटाइट। और एक बार बोल रहा हूँ, बोरन, सिलिकॉन, जर्मानियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, पोलोनियम एंड आस्टाटाइट। क्लियर हुआ? उसी को ही मैं इस गाने के साथ लिखा, आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी। इस लाइन का मतलब सबको समझ में आ गया? अभी मैं एलिमेंट पे आता हूँ, है ना? तो यहाँ पे हमें आया, आंटी से देखो ए भी है टी भी है, तो आस्टाटाइन आ गया। क्लियर हुआ? तो आंटी तेरी से आया टेलुरियम, तेरी से आया टेलुरियम। सब्जी से दो चीज आया, एक ये इससे आया एंटीमोनी, और ये जी जो है ना, जी, इससे आया जर्मानियम। पी से आया पोलोनियम। क्लियर हुआ? और यहाँ पे 3 एलिमेंट है, एक बोरन है, इसीलिए मैंने इसको कैपिटल ए लिखा, फिर ये आर्सेनिक है, फिर ये सिलिकॉन है। चेक कर लो जितने एलिमेंट्स हैं सारे हैं कि नहीं, है ना? सारे हैं कि नहीं? देख लो, देखो बोरन है कि नहीं, देखो यहाँ पे बोरन, यहाँ पे बोरन। सिलिकॉन देखो, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन। और यहाँ पे उसके बाद आर्सेनिक। तो बासी जो वर्ड है, बासी वर्ड में 3 एलिमेंट है। क्या क्या हुआ? बोरन, हाँ बोल सकते हो मेरे साथ, बोरन, आर्सेनिक और सिलिकॉन, है ना? तो याद रहा सबको। देखो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेमोरी बेस्ड चीज है, तो मेरे क्लास खत्म करते करते तुम्हें ये फील हो कि सर जो बताएं मुझे याद रह गया। मैं भी नहीं बोल रहा हूँ घर पे जाके बहुत ज्यादा पढ़ो, लेकिन जब मैं होमवर्क दूंगा उसको करोगे और पूरा क्लास में अटेंटिव सुनो, और मैं तुम्हें हेल्प करूंगा ये पूरा चीज यहीं पे याद रखने के लिए। अच्छा है ना ये चीज? अच्छा है ना? फिर सर मजा आ गया, फिर हम तो बात करते। तो मम्मी पापा को बोल दे यार जो पूछो ना सर, पढ़ाए हम तो याद रख चुके हैं, पढ़ेंगे क्यों, है कि नहीं? है ना? ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। देखो, तो क्या सबको ये लाइन याद हो गया? क्या सबको ये लाइन याद हो गया? आंटी तेरी सब्जी रोटी बासी, पूरी बासी, है ना? मतलब तुम कोई आंटी के घर चले गए और वो रात की जो सब्जी है वो तुम्हें सुबह खिला दी और वो बासी निकली, तुम क्या बोलोगे? यार आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी। याद रह गया सबको? हाँ यस। हाँ सर। अरे Yes, मजा sir. आ रहा है क्या? मैं ऐसे चला रहा हूँ। हाँ सर। यस हाँ सर, हाँ सर सर। है। तुम्हारे यस में दम नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है तुम्हें ग्लूकन डी 100 ग्राम का मतलब पानी मिला के पिलाना पड़ेगा। सुश्री रेस्पॉन्डिंग, सुश्री रेस्पॉन्ड, सुश्री लग रहा है सुश्री सो गई। सुश्री यस सर, नेट स्लो था। ओके ठीक है, देखो तो यहाँ पे देखो पहले तो हमें ये करना पड़ता है ऐसा ना सर, जो है ये स्टेटमेंट या जो गाना आप बोले या तो जो स्टेटमेंट बोले हमें तो याद रह गया और एलिमेंट कैसे लिखे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम्हें क्या करना होगा। पहला काम होता है, मैं ये सारे कलम के लिए तुम्हें बताऊंगा, सारे बताऊंगा, और यहाँ पे तुम्हें क्या है, हर वर्ड कौन से एलिमेंट के लिए रखा गया वो तुम्हें सोचना पड़ेगा। आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी, बस ये ध्यान देना है, यहाँ पे आंटी से एक ही एलिमेंट आता है, तेरी से एक ही एलिमेंट आता है, सब्जी से 2 एलिमेंट आता है, पूरी से 1 एलिमेंट आता है और बासी से 3 एलिमेंट आता है। क्लियर हुआ, है ना? आंटी स्टैंड्स फॉर 1 वर्ड, आंटी स्टैंड्स फॉर 1 एलिमेंट, देन तेरी स्टैंड्स फॉर 1 एलिमेंट, सब्जी स्टैंड्स फॉर 2 एलिमेंट्स, देन पूरी स्टैंड्स फॉर 1 एलिमेंट एंड बाकी स्टैंड्स फॉर 3 एलिमेंट, है ना? तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने ही एलिमेंट हुए। तो आंटी के लिए क्या हुआ देखो, एस्टोटाइन, तेरी के लिए क्या हुआ देखो, टेलुरियम, सब्जी के लिए क्या हुआ देखो, ये हो गया सीवियम और एंटीमोनी एंड जर्मानियम, पूरी के लिए बस पी लिए हम और पीयू नहीं, सिर्फ पी लिए हैं, और पी के लिए पोलोनियम, और उसके बाद बासी के लिए 3 एलिमेंट, बोरन, आर्सेनिक, सिलिकॉन। मुझे बताओ किसको याद रह गया पूरा? किसको याद रह गया? यस, मैं 1 मिनट टाइम देता हूं, ट्राई करो याद रखने के लिए, जिसके याद रह गया वो यस सर बोलना।
देखते हैं कौन जल्दी याद रखता है। यस, सर हो गया। हो गया। क्या नाम है बेटा तेरा? स्मृति। स्मृति, चल बता। बिना आंटी देखे बताना बेटा, नहीं तो सर के Yes, sir. पीछे भी है तो हम लोग तो अपने स्क्रीन में भी है तो हम लोग बता देंगे। यू शुड बी ऑनेस्ट। हाँ, ओके सर। सर वो है आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी। इट्स आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, फिर होता है कि एंटीमोनी। आंटी के लिए कौन सा आंटी के लिए कौन सा एलिमेंट है? टेल मी। 80 80 का नाम क्या होता है? एस्टेटाइन, टाइम होता है। ओके, देन तेरी के लिए क्या है? टेरुलियम, टेलुरियम। टेलुरियम। टेलुरियम, देन सब्जी के लिए एचबी यानी कि एंटीमोनी एंड And? जर्मेनियम। जर्मनियम, फिर देन पूरी के लिए पोलोनियम, देन पोलोनियम, बासी के लिए बोरॉन, आर्सेनिक, सिलिकॉन। बोरॉन, आर्सेनिक, सिलिकॉन। ओके, एनीवन फ्रॉम बॉयज? यस सर, हो गया। हाँ, चल बता। सर आंटी से एस्टेटाइन, तेरी से टेलुरियम, सब्जी से एंटीमनी और जर्मेनियम, पूरी से पोलोनियम और बासी से बोरोन, आर्सेनिक एंड सिलिकॉन। ओके, तो बाकी सबका भी हो गया होगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। सुनो, ये याद रख के तुम लोगों को एक प्रोबेबल क्वेश्चन नीट लेवल में 4 मार्क का रेडी हो गया। ये एक 4 मार्क का प्रोबेबल क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि हर साल आएगा, तो 2-3 साल में ये आ जाता है। तो 4 मार्क तुम्हारा रेडी हो गया, और 4 मार्क अगर तुम गैदर करते हो तो तुम्हारा रैंक 3-4 हजार ऊपर आ जाएगा। तुम लोगों का इसका स्टैटिस्टिक्स नहीं पता है, क्योंकि हर साल मेडिकल में 16 लाख बच्चे देते हैं, नियरली 16 लाख स्टूडेंट। क्लियर हुआ? और सिर्फ 40 से 50 हजार बच्चों को मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो सोचो एक एक मार्क पे कितने बच्चे रहे हों। तो ये सब बहुत जरूरी है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखोगे। तुम अभी इसको हर 2 दिन में याद करोगे, हर 2 दिन में याद करोगे, यार सर क्या बोले थे तो मैं याद कर लूं, तब जाके तुम्हें याद रहेगा। और मुझे जैसे 2-3 महीना कर लोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा, है ना? क्लियर हुआ? तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये हो गया हमारा कौन सा पार्ट? मेटालॉइड पार्ट। ये जो हम लोग लिखेंगे मेटालॉइड है। मेटालॉइड क्या बोला मैं? द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विच हैव the intermediate property between the metal and non-metal. मेटल नॉन मेटल का जो प्रॉपर्टीज होते हैं उनका इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी जो कैरी करते हैं उनको मेटालॉइड बोलते हैं। और उसके लिए गाना है आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी, और एस्टेटाइन, टेलुरियम, एंटीमोनी, जर्मानियम, पोलोनियम, बोरन, आर्सेनिक, सिलिकॉन एंड बोरन। तो दीज आर द एलिमेंट्स। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे अम्फोटेरिक नेचर किसका होता है। अम्फोटेरिक नेचर कौन मुझे बताएगा? अम्फोटेरिक नेचर क्या होता है? सर जो बहुत एसिड एंड बेस से रिएक्ट करता है, वो तो एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है। फॉर्म करता है। एसिडिक एंड बेसिक दोनों प्रॉपर्टी होता है। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब हम्म, खुद वो जब बेस होगा तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जब वो खुद एक बेस होगा तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जब खुद वो एसिड होगा तो बेस के साथ रिएक्ट इसके साथ रिएक्ट करेगा। मतलब ऐसे बोल सकते हो द स्पीसीज व्हिच कैन रिएक्ट बोथ विद एसिड एंड बेस, और ऐसे बोल सकते हो द स्पीसीज व्हिच इटसेल्फ इज एन एसिड एंड एज वेल एज ए बेस। क्लियर हुआ? दोनों मतलब एक ही है। तो इसके लिए देखते हैं कैसे याद रखेंगे। तो मैंने लिखा सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। मैं तुम्हें बता देता हूं इसका मतलब क्या है। सब मतलब सब लोग जानते हो तुम लोग,
सब जन की आस, आस मतलब जो आस्था होता है, जो होप होता है ना। और सुनो प्रभु अल्लाह, मतलब प्रभु और अल्लाह को ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि सब लोगों का जो होप है, जो आस्था है, उसको सुन लो। सबको क्लियर हुआ इसका मतलब क्या है? जब तक इस लाइन का मतलब हम समझेंगे नहीं, तब तक हमें याद नहीं रहेगा। क्लियर हुआ सबको? या और एक बार बोलूं? हाँ सर, हाँ, सब जन सुनाई दिया। की आस सुनो प्रभु अल्लाह, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। क्योंकि मतलब यार कोई मुस्लिमों का यार सर आप हमेशा प्रभु बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, यार अल्लाह को तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है ना, सारे गॉड एक जैसे ही होते हैं। इसलिए मैंने इसमें देखा यार ये तो हो गया। देखो, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, देख लो तो सबसे तुम्हें समझ में आ रहा होगा एंटीमोनी आ गया है कि नहीं आया? हाँ सर। तो मैंने जेड लिखा, जे नहीं लिखा, जेड एन क्या गया? जिंक। क्या गया? यस, जिंक। इसके लिए कोई वर्ड नहीं है। इससे हमें, हाँ इससे हमें मिल गया, देखो क्या आ गया, क्या आ गया ये? आर्सेनिक। आर्सेनिक। आर्सेनिक आ गया। इससे देखो क्या आ गया? एसएन क्या होता है? टिन। टिन। इससे देखो पीबी क्या आ गया? लेड। लेड। और इससे देखो फर्स्ट दो लेटर क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। तो तुम याद रख चुके हो अभी। देख लो, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, ये भी एक प्रोबेबल 4 मार्क का क्वेश्चन है नीट लेवल का। मैं क्लियर बता दूं, ये भी एक प्रोबेबल, वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन दोनों प्रोबेबल है। और बहुत स्टूडेंट को ये याद नहीं रहता है, इंक्लूडिंग मेनी टीचर्स आर ऑल्सो, है ना। मुझे भी याद नहीं था जब मैं तुम्हारे स्टूडेंट था, बिल्कुल याद नहीं था। 2-3 याद होगा फिर भूल जाऊंगा मैं, तो इसीलिए ये सब निकाला जाता है। तो क्या हो गया? सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, मतलब जितने लोग हैं प्रभु और अल्लाह को रिक्वेस्ट किया जा रहा है, सबका जो आस है, जो होप है, उसको सुन लो, जो मांग है वो पूरा कर लो। सबको क्लियर हो रहा है? सबको क्लियर हो रहा है? यस तो सर। सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, मुझे बोलने का जरूरत नहीं, अपने आंख बंद करो और ये स्टेटमेंट को 5 बार अपने मन में दोहराओ। आवाज नहीं आना चाहिए। हो गया तो यस बोलो। यस सर। हो गया। सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, सब फॉर एंटीमनी, जन फॉर जिंक, की के लिए कुछ नहीं, आस के लिए आर्सेनिक, सॉरी सुनो के लिए टिन, प्रभु के लिए पीवी और अल्लाह के लिए एल्यूमिनियम। तो आज से जब भी तुम लोग प्रभु के वर्ड तुम्हारे मन में आया, घर में डिस्कशन होगा, तो प्रभु मतलब पीवी और लीड, समझ में आया? अल्लाह जब भी याद आएगा तो अल्लाह मतलब एल्यूमिनियम, है ना, है ना। भगवान तो सबको हेल्प करते हैं, तो उनका नाम में भी नाम भी काम करिए। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? ओके। तो टेक 1 मिनट और याद करके मुझे बताओ, कि ये सर मैं याद रख चुका हूँ। सर एसएन क्या होता है? टिन। सर याद हो गया। सर एसबी क्या होता है? हाँ बोल। सर एसबी क्या होता है? एंटीमोनी। अच्छा, एंटीबॉडी। और वो जो 80 था? आस्टाटाइन, ये यहाँ पे आस्टाटाइन। अच्छा, एस्टाटाइन और एंटीमोनी। हाँ सर, ठीक। एंटीमोनी। सर हो गया सर। सर हो गया हो मेरा गया? भी। यस सर। हाँ सर। हो गया। अच्छा, अभी जो पहले जो लोग बता चुके हो उनको छोड़ के और कोई बॉयज में कोई? सर हो गया। सर हो गया। हाँ, हाँ जो सर, हो लोग गया। बता चुके हैं, पहला जो मेटालॉइड्स का जो सीरीज है, जो लोग बता चुके हैं उनको छोड़ के मैं चाहता हूँ और कोई बताए। बॉयज में और कोई? मैं बता रहा हूँ सर। हाँ, तो नाम बता बेटा। कुबेर। हाँ बता। हाँ सर, सबसे आ गया एसबी जो एंटीमनी है, फिर जन से आ गया जेडएन जो जिंक है, फिर की से के आया पोटाशियम, फिर आस अरे से नहीं, एस मैंने बोला वो नहीं है, इसलिए मैंने सर्कल कर दिया, वो नहीं है, बोलना नहीं, पोटेशियम अम्फोटेरिक है। इसमें नहीं है? अच्छा ठीक है। अरे नहीं है, वो तो इसके नीचे कुछ लिखा क्या? मैं
नहीं लिखा ना? हाँ हाँ ठीक है नहीं है, हाँ मैंने, हाँ AS से आर्सेनिक है, आर्सेनिक, हाँ SN से टिन है, और टिन है। प्रभु PB से लीड है, और अल्लाह से AL एल्युमिनियम है। गर्ल्स में से और कोई? अर्पिता, अर्पिता प्रेजेंट है? यस क्या सर, सो गई? ये सब प्रेजेंट हूँ हाँ चल बता। सर। सब से SB एंटीमोनी, और जन से ZN जिंक, AS से आर्सेनिक, सुनो से SN टीन, प्रभु से PB लीड, अल्लाह से एल्यूमिनियम। ओके, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाकियों को भी याद रह गया। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। तो तुम्हें आज के बाद कोई अगर पूछे मेटालॉइड पीरियोडिक टेबल में कौन कौन होते हैं और एम्फोटेरिक एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं, क्या तुम उनको बोल दोगे? यस सर। हाँ सर। लेकिन तुम उनको ट्रिक नहीं बताना, क्लियर हुआ? ओके उनको सर। ट्रिक नहीं बताना, क्योंकि सारे तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स हैं। इस बात को फील करो, तब जाके एंट्रेंस में मिलता है। नहीं तो क्या होगा, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको अगर स्पेशली कोई चीज मिलता है, अगर जो मेरे पास नहीं पढ़े उनको ही मिल गया तो फायदा तुम्हारा क्या हुआ? समझ में आ रहा सबको? मतलब तुम अगर मेरे स्टूडेंट हो तो तुम थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, मैं अगर तुम्हारे टीचर हूँ तो मैं भी थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए बाकी टीचर, है कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए बताना नहीं किसी को। मतलब कोई ऐसे पूछ सकते हो कि उसको तड़पाने के लिए कि चल बता एम्फोटेरिक एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं, वो बता नहीं पाएगा तो बता देना ये सब होता है, लेकिन ट्रिक्स कभी नहीं बता। क्लियर हुआ? हाँ। यस सर। तो अभी क्या है, हम ग्रुप वाइज इसको याद रखेंगे, एक एक ग्रुप वाइज इसको हम याद रखेंगे। तो मैं तुम्हें बताऊंगा, आज के क्लास में पूरा तो नहीं हो पाएगा। देखो ये बिल्कुल 15 मिनट में याद रह जाता है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मुझे टाइम लग रहा है ना? तो पहला जो है वो है ग्रुप 1, पहला जो है वो है ग्रुप 1 और रोमन 1 है। ध्यान से देखो इसको। पहले क्या, जब लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल आया तो पहले उसको रोमन नंबर में किया गया, तो 1A 2A, देन यहाँ पे 3A। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनो। तो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक चेक करना है ना, सबको सुनाई दे रहा है? सही है? क्या क्या है सुनो, 1A 2A, यहाँ पे 3A, यहाँ पे 4A, यहाँ पे 5A। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने तो यहाँ पे B लिख दिया। तुम मन में सोच रहे होंगे यार एनसीईआरटी गलत होना हो सकता है। हाँ, किसके मन में ऐसा आ रहा है? यू आर फ्री टू से। मेरा मन में ऐसा कुछ नहीं सर, एनसीईआरटी बहुत घटिया है। नहीं ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी भी अच्छा बुक है, लेकिन कुछ पोर्शन हो गया। ओके सुनो, तो एनसीईआरटी भी अच्छा बुक है, लेकिन कुछ पोर्शन में गड़बड़ कर दिया है, और ये बहुत मतलब 100 साल से बुक चल रहा है और वो रीप्रिंट हो रहा है, रिवाइज नहीं हो रहा है। तो ध्यान से देखो, यू कैन चेक। मैं नहीं बोल रहा हूँ तुम कोई और हायर ऑथर को चेक भी कर सकते हो। एनसीईआरटी में गलती से क्या किया, इसको 1A 2A करके 3A 4A 5A 6A कर दिया। प्रॉब्लम कहाँ पे रहा होगा सुनो, जो टाइप कर रहा होगा ना कंप्यूटर ऑपरेटर, तो वो गलती से कर दिया होगा कि 2A के बाद तो 3A यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे कहाँ होगा, तो उसको वेरीफाई नहीं किया गया, प्रूफ रीड नहीं किया गया, इसलिए प्रॉब्लम हुआ। तुम जाके ये देख लो, या तो मेरे ऊपर पूरा ट्रस्ट करो कि मैं तुम्हें फंसाऊंगा नहीं कभी, या तो सेकंड ये सोचो कि तुम लोग का कोई बुक जाके देख लेना, या तो नेट से चेक कर लेना, पीरियोडिक टेबल आ जाएगा रोमन नंबर के साथ, देख लेना क्या है। पूरा क्लियर हुआ सबको? सही है? हाँ सर। यस सर। यहाँ पे ये 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7 है और 8A नहीं होता है और 0 ग्रुप होता है। और यहाँ पे ये 2A के बाद 3, 2 के बाद 3 हुआ, ये A के बाद B है। रीजन मैं बताऊंगा क्यों ऐसा हुआ है, क्यों ऐसा ये 2A के बाद 3A यहाँ से हुआ है ना। देखो मैं तुम्हें ये करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें वो पूरा पीरियोडिक टेबल तुम्हारे आंखों के सामने लाना चाहता हूँ, ये मेरा इंटेंशन है। जबकि मेरे सामने ये है, तो मुझे कोई भी एलिमेंट का डिटेल्स पूछोगे, जैसे उसका सर कौन सा ग्रुप में बिलोंग करता है, कौन से पीरियड में बिलोंग करता है, मैं एक एटॉमिक नंबर बता रहा हूँ आप उसके डिटेल्स बताइए, मैं एक एलिमेंट बता रहा हूँ आप इसका एटॉमिक नंबर बताइए। सिर्फ पीरियोडिक टेबल याद रखना जरूरी नहीं है,
इन 2003 AIEEE जो आज के डेट में जेई मेन हो चुका है, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ गोल्ड इन पीरियोडिक टेबल, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ गोल्ड इन पीरियोडिक टेबल। तुम्हारे सामने यहाँ पे ये है पीरियोडिक टेबल, देखो गोल्ड कहाँ गया, यहाँ पे गोल्ड। क्लियर हुआ सबको? अरे क्लियर हुआ? तो ये जो है गोल्ड पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे है, तो तुम देखोगे तो ये कौन सा ग्रुप है, देख लो 11वां ग्रुप है और 1B ग्रुप है और पीरियड मतलब 4, 5, 6 है, तो 6 पीरियड 11th ग्रुप। तुम यहाँ पे देख के बोल लोगे ना, क्योंकि तुम्हारे आंखों के सामने क्या है, पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल। हाँ क्या है बेटा? सुनाइए हेलो सबको? हाँ सर। तो मैं चाहता हूं जैसे कि पीरियोडिक टेबल तुम्हारे सामने है, मैंने बोला गोल्ड कहाँ है, तुम बोलोगे सर यहाँ पे है गोल्ड है। ये कौन सा ग्रुप है? 11th ग्रुप और 1B ग्रुप, ये दोनों मतलब अलग अलग नाम है, 1B भी बोल सकते हो, 11th ग्रुप भी बोल सकते हो। तो ये है, और पीरियड में जो है तो ये फर्स्ट पीरियड लिथियम से लेकर नियन तक सेकेंड पीरियड, सोडियम से लेकर आर्गन तक थर्ड पीरियड, पोटेशियम से लेके क्रिप्टन तक फोर्थ पीरियड, मतलब ये वाला फोर्थ पीरियड हुआ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो ये 6 पीरियड में है और 11th और 1B ग्रुप में है। जैसे तुम यहाँ पे देख के बोल सकते हो, तुम यहाँ पे पूरा विजुअलाइजेशन कर सकते हो। मैं वो चाहता हूँ तुम्हारे सामने, मैं एग्जाम में मैं नहीं रहूंगा, ये नहीं रहेगा, तो तुम्हारे सामने एक इनविजिबल पीरियोडिक टेबल होना जरूरी है। और इससे ये 4 मार्क का क्वेश्चन आया था AIEEE में, जिससे NITs जो NITs होते हैं सर आउटला में है, वो सारे का जो एडमिशन AIEEE से होता था, जो आज के डेट में जेई मेन हो चुका है। तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। सोचो, इससे एक फायदा भी है, इनऑर्गेनिक से एक फायदा भी है, जो चीज मेमोरी बेस्ड से होता है ना, वो डायरेक्टली बुक से क्वेश्चन आएगा। इनऑर्गेनिक में कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन ऑर्गेनिक में काफी ट्विस्टेड, फिजिकल केमिस्ट्री में काफी ट्विस्टेड क्वेश्चन आता है एंट्रेंस। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, ये सब पार्ट अगर याद हो गया तो तुम लोग बाकी दोस्तों से, बाकी स्टूडेंट से ऊपर आ गए, और यही रैंक डिटरमिनिंग होता है। मैं बोल रहा हूँ 2 क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड अगर इनऑर्गेनिक का तुम कर लिए और ये है, और मैं तुम लोग सोचोगे सर मैं आप इनऑर्गेनिक क्यों स्टार्ट किए, क्योंकि तुम फिजिकल ऑर्गेनिक तो एंजॉय करोगे ही करोगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल है। जो बोरिंग चीज है मैंने उसको पहले स्टार्ट किया है ना, क्योंकि ये तो तुम लोग वो मूवी टाइटल सुने होंगे ना, सुने हो ना, ये तो ट्रेलर था, मूवी तो बाकी है, सुने हो ना? यस सुने। तो बोरिंग चीज है, मैंने इसको इंटरेस्टिंग बनाया, और इंटरेस्टिंग तो है ही, ठीक है। तो देखो, तो इसका भी हम याद रखते हैं। अच्छा, मैं ये बोल रहा था, ये 2A के बाद 3A यहाँ से क्यों स्टार्ट हुआ? मुझे बताओ, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? बेरिलियम के पास एटॉमिक नंबर 4 है, तो 2 और 2 करके इलेक्ट्रॉन है, तो सेकंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी के पास नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, ये फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट, बोरॉन में देखो क्या 2 और 3, बोरॉन में देखो क्या है, इसमें बेरिलियम में 2 और 2, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो बोरॉन में फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन। Means after this beryllium, the next electron is entered into the same second orbit, and the element is present in this group, so this is named as 3A after 2A। सबको क्लियर हुआ क्यों ऐसा हुआ? हाँ हाँ हाँ, सबको क्लियर हुआ? मतलब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा, पहले तो एक भरेगा, फिर 2 भरेगा, फिर 3, फिर 4 के बाद 5, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू द सेकंड orbit only, and which is coming after this beryllium. That's why, and this is present in this group, so that's why it is present, that it's named as 3A। सबको समझ में आया क्यों ये 3A हुआ? आज जाके में अगर खरीद चुके हो या तो पुराने एनसीईआरटी है तो उसको चेंज कर लो। तो ये जो तुम्हारे बुक में क्या किया है देखो, एस ब्लॉक में सही रखा है, सी ब्लॉक में और डी ब्लॉक में ए बी का होता है ना। देखो यहाँ पे 3B स्टार्ट हुआ, यहाँ पे भी 3A, 3 तो दोनों में स्टार्ट हुआ है, तो वो ए को बी कर दिया, बस इतना ही काम किया है। तो कुछ चेंज कर देना है, या तो अगर भरोसा नहीं है तो फिर वो बुक चेक करके करना, या तो नेट चेक करके करना, ठीक है। अभी हम इसको याद रखते हैं कैसे हुआ। देख तुम इससे कुछ 1-2 गाना सुने होंगे, मैं पूरा बताऊंगा 18 ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स हैं देख लो, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, सैल्सियम। अच्छा मैं और एक चीज बताना चाह रहा हूँ, ये जो हाइड्रोजन है इसका लोकेशन ग्रुप 1 में नहीं है, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन का पोजीशन ना तो ग्रुप 1 में है ना तो ग्रुप 17 में है, वो कहीं का नहीं है, वो कहीं का नहीं है ना,
मतलब सुने होंगे धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। घर का ना घाट का। हाँ हाँ, सर। तो हाइड्रोजन वही है, धोबी का कुत्ता है वो, ना घर का ना घाट का, है ना। क्यों ऐसा है इसका भी रीजन बताऊंगा मैं, ठीक है। हाँ। तो अभी बस याद रखने के लिए बता दिया, लेकिन तुम्हें अगर कोई वहां का एलिमेंट एग्जैक्टली कोई पूछा तुम लिथियम से ही बोलोगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मैं हाइड्रोजन को क्योंकि अगर वो लिखा नहीं है तो याद कैसे रखेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया। लेकिन बाद में अगर तुम्हें कोई पूछा वहां एलिमेंट्स का कौन कौन एलिमेंट है, तुम बोलना लिथियम से स्टार्ट हुआ, फ्रांसियम में एंड हुआ। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। आपको दिख रहा है ये? यस सर। दिख रहा है? हाँ लीना की रब से फरियाद, हाँ लीना की रब से फरियाद, है ना। देखो हाँ के लिए एक एलिमेंट आया हाइड्रोजन, लीना के लिए दो एलिमेंट लिथियम सोडियम, यहाँ पे पोटेशियम, आरबी से रुबिडियम, सी से सीजियम और एफआर से फ्रांसियम। तो हाँ लीना की रब से फरियाद, हाँ फॉर हाइड्रोजन, लीना फॉर टू एलिमेंट, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इन कैपिटल इन बिटवीन दिस वर्ड, इन बिटवीन दिस वर्ड। क्लियर हुआ? हाँ लीना की रब से फरियाद, जिनको ये कुछ चीज है ना, जैसे मैं तो भुवनेश्वर में 10-12 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ चीज वायरल हो गया और कुछ टीचर ये 2-3 लाइन बच्चों को बोल भी देते हैं, तुम लोग सुने भी होंगे, कुछ जो नहीं सुने होंगे पहले ये स्टेटमेंट याद करो। हाँ लीना की रब से फरियाद, मैं इसका मतलब समझाता हूँ। हाँ मीन्स विथ फ्रस्ट्रेशन, लीना एक लड़की है, रब मतलब भगवान है, फरियाद मतलब कंप्लेन, मतलब विथ फ्रस्ट्रेशन लीना इज कंप्लेनिंग टू गॉड। मतलब समझ में आया सबको? यस, अगर समझ में आया तो। हाँ लीना की रब से फरियाद मतलब विथ फ्रस्ट्रेशन लीना इज कंप्लेनिंग टू गॉड, मतलब हाँ मतलब विथ फ्रस्ट्रेशन, और लीना एक लड़की है, और की मतलब पोटेशियम है, रब मतलब भगवान है, से फरियाद मतलब कंप्लेन। तो क्या ये स्टेटमेंट सबको याद हो गया? हाँ लीना की रब से फरियाद। यस सर। याद हो गया? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। देखो हाँ के लिए हाइड्रोजन, लीना के लिए लिथियम सोडियम, की के लिए पोटेशियम। वहां पे तुम बताओगे सर वहां पे तो आप की के लिए नहीं लिए थे यार, वहां पे नहीं लिया था, यहाँ पे लिया था, ठीक है। तो हाँ लीना की रब से फरियाद, हाँ के लिए हाइड्रोजन, लीना के लिए लिथियम सोडियम, की के लिए पोटेशियम, रब के लिए रुबिडियम, सी से 6 सी लिए, अंडरलाइन किया मैं, देखो 6 सी लिए, और सी एस है सीजियम, और ये फ्रांसियम, फरियाद के लिए फ्रांसियम, है ना। क्लियर हुआ सबको? यस सर। क्लियर हुआ? हाँ सर। तो मेरे साथ बोलो, है ना। मैं तुम्हें ये बोलूंगा, अभी गाना नहीं, मैं सिर्फ ये एलिमेंट बोलूंगा, मेरे साथ तुम बोलना, है ना। 2 बार बोलेंगे। क्लियर हुआ? चलो स्टार्ट हो जाओ। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। यार कल से मैं तुम्हारे घर पे कुछ ग्लूकोन डी भेज दूं क्या? ग्लूकोन डी भेज दूं? नहीं सर। तो दोस्त लाओ, क्या है आगे ये मैं न्यू टाइम शेड्यूल कर लेता हूँ, है ना। थोड़ा इवनिंग टाइम में 8 से 10, 8 से 9:30 कंफर्टेबल हो रात को? हाँ सर। हाँ सर। कंफर्टेबल। सर रात को तो हम सर मतलब रात को तो पूरा कंफर्टेबल है सर। पिछले घर में हम उल्लू थे, रात भर जागते थे। आज अरे पढ़ाई की भी तो थोड़ा बहुत मजाक मस्ती होना चाहिए, है ना। सबसे जिंदगी में मजा आ जाएगा, है कि नहीं? चलो। हाँ सर। ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मेरे टीचर से तो मैं डरता था, चश्मा के नीचे ऐसे देखते थे, तो उसमें नहीं मतलब डर के मैं नहीं था, मुझे डाउट है ही, है ना। अच्छा मैंने जब मैं 11 में पढ़ रहा था, मैं हिम्मत करके एक डाउट पूछ लिया, ठीक है, टीचर से। अरे यार बहुत हिम्मत करके, ऐसा लग रहा था यार मैं पता नहीं अपना किडनी किसी को बेच रहा हूँ। तो मैंने पूछ लिया एक क्वेश्चन, मेरे सर मुझे 5 क्वेश्चन उल्टा पूछ लिए। यार ये क्या यार, मतलब ये क्या यार नाइंसाफी हुआ। मैंने एक पूछ लिया, क्या गलती के लिए यार 5 क्वेश्चन तुम उल्टा पूछ रहे हो, ठीक है टीचर हो मतलब चलो पूछ लो। फिर मैंने बता नहीं पाया, ऑब्वियस नहीं बता पाया, मैं डरा हुआ था पूरा क्लास में लगभग 100 से ऊपर बच्चे बैठे, मैं पूरा डरा हुआ था। फिर मुझे गाली दी है, मतलब कैसा गाली सुनो, मतलब यार क्या बेकार लड़का है तू, तुझे ये क्वेश्चन कुछ नहीं आता, डाउट पूछ के हीरो बनना चाहता है, ये स्टेटमेंट था। मैं डाउट यार मुझे फील हुआ यार, ठीक है मतलब गाली देना था बाहर, मुझे
झापड़ मार देते यार, लड़कियां हैं यार क्या, समझ रहे हो? अभी जैसे अभी तो नहीं फील आ रहा है ना, अभी मुझे फील नहीं है क्योंकि मैं टीचर हूँ, तभी तो मैं टीनेजर था ना तुम्हारे जैसे, है ना यार। फील यार सिर्फ लड़के होते यार, चलता यार, लड़कियों के सामने क्या अपना इज्जत, ठीक है। इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ, और उस दिन के बाद मैं सच में बता रहा हूँ, मैं उस टीचर से एक भी डाउट नहीं पूछा। तो इस बात का जो इफेक्ट था मेरे दिल पे बहुत ज्यादा था। मैं आज भी टीचर से रेस्पेक्ट करता हूँ, उस जमाने में चलता था, है ना। तो मैं आज भी रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन बात यह है कि मतलब ऐसा अगर मैं करूंगा तो तुम्हारा डाउट जो है क्लियर होके नहीं आएगा। तो तुम्हारे मन में जो भी डाउट है, मैं तुम्हें अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, है ना, और तुम्हारा पास तो नंबर है, मैं उस ग्रुप में एडमिन भी हूँ, है ना। तो तुम लोग जो भी डाउट होगा वो शेयर कर सकते हो, जो भी तुम्हारा फीलिंग्स है वो शेयर कर सकते हो, और उस नंबर पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, सर मुझे ये फील हुआ, मुझे डाउट है, बता दो। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, वो सब दोस्त है, सारे दोस्त हैं, अपना काम बने बस, बाकी वो सब देखना नहीं चाहिए, है ना। तुम्हें सिर्फ टीचर से मतलब है। और मैं ये थोड़ा, मेरा ये प्रयास है, मेरा थोड़ा ये ट्रायल है कि मैं थोड़ा पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कर लूं, ताकि बच्चे थोड़ा पढ़ाई एंजॉय करते करते थोड़ा पढ़ ले, है ना। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम एंजॉय कर रहे होंगे, जो भी अपना फीलिंग से पर्सनल लिख देना, है ना, मुझे वो सब बुरा नहीं लगता है। हाँ सर, हाँ क्योंकि मेरा इज्जत जो है लूट चुके हैं वो टीचर। ठीक है, चलो। तो हाँ लीना की रब से फरियाद, हाँ फॉर हाइड्रोजन, लीना फॉर लिथियम सोडियम, और की फॉर पोटेशियम, रब फॉर रुबिडियम, से फॉर सीजियम, एंड फॉरियाद फॉर फ्रेंशियम। तो हम लोग, मैं बोल रहा था, तुम लोग मेरे साथ बोलो। हाइड्रोजन, 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 बोलना, घर में भी सुने यार, कोई पढ़ाई कर रहा है। हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, रुबिडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। कैल्शियम, और एक बार हाइड्रोजन, मैं अभी थोड़ा स्पीड बोलूंगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ओके, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इज योर ग्रुप 2A और 2। देखो, ये चीज काफी वायरल हुआ, इसको मैंने 2007 में निकाला, ये काफी वायरल हुआ। ये लाइन देख लो, सुने भी होंगे तुम लोग। बेटा मांगे कार क्या, हाँ सुना हूँ। कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। गाने का मतलब समझा देता हूँ। जब बेटा ने पापा से कार और स्कूटर दोनों एक साथ मांग लिया, तो पापा का तो रोना ही आएगा ना। अरे समझ रहे हो? सुनाई दे रहा है? हाँ। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा के लिए बेरिलियम, मांगे के लिए मैग्नीशियम, कार के लिए कैल्शियम। SR लेंगे, SC नहीं लेंगे। SC इज योर स्टैंडियम, हमें चाहिए स्ट्रॉन्सियम। और बाप के लिए Ga बैरियम, और रोए के लिए सिर्फ R लेंगे, और वो रेडियम। देख लो यहाँ पे थोड़ा एलिमेंट देख लो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बैरियम, रेडियम। हो गया? देख लो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। स्टेटमेंट याद हो गया क्या? हाँ सर, याद हो गया क्या? हाँ याद हो गया। हाँ। तो अभी देखो, बेटा के लिए बेरिलियम, मांगे के लिए मैग्नीशियम, कार के लिए कैल्शियम, स्कूटर के लिए स्ट्रॉन्सियम, बाप के लिए बैरियम, एंड रोए के लिए रेडियम। क्लियर हुआ सबको? चलो मेरे साथ एलिमेंट्स बोलो। बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, स्ट्रॉन्टियम भी बोलते हैं, स्ट्रॉन्सियम दोनों बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्ट्रॉन्सियम, बैरियम, रेडियम। और एक बार कोई बोलेगा अपने से जल्दी। हाँ,
सर लास्ट वाला क्या है? रेडियम, रेडियम, रेडियम। आर ए रेडियम। हम सिर्फ इससे आर लिए, आर वो नहीं लिए, आर लिए। क्लियर हुआ? बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोए। बेटा फॉर बेरिलियम, मांगे फॉर मैग्नीशियम, कार फॉर कैल्शियम, स्कूटर फॉर स्ट्रोंशियम, बाप फॉर बेरियम एंड रोए फॉर रेडियम। सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर, नेक्स्ट देखते हैं हाँ सर, थर्ड हाँ ग्रुप। थर्ड ग्रुप देखते हैं, थर्ड ग्रुप। तो ग्रुप 3B और 3 ध्यान रहे, ये 1A 2A के बाद 3B स्टार्ट होता है, और ये नॉर्मल 3 जो है हम लोग नीचे जो ग्रुप है। देखो क्या क्या एलिमेंट्स है यहाँ पे है। स्कैंडियम, क्योंकि डी ब्लॉक का जो सिंबल है बच्चों को वो सिंबल का फुल फॉर्म याद नहीं रहता है। तो मैं बता, तुम चाहोगे तो बता भी सकता हूँ, या तुम बुक देख के इसका नाम भी देख सकते हो। मैं नाम बता दूंगा, याद रखने के लिए बुक देख सकते हो। ये स्कैंडियम है, ये इट्रियम है। सबको सुनाई दे रहा है? Yes, sir. यस, Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। स्कैंडियम, इट्रियम, Sir. लांथानम, एक्टिनियम, है ना? स्कैंडियम हुआ, इट्रियम हुआ, लांथानम हुआ, एक्टिनियम हुआ, है ना? देखो इसको कैसे याद रखोगे। स्कूटर इधर लाओ एसी वाला, आया समझ में? स्कूटर इधर लाओ एसी वाला। अभी हम 1-2 मिनट में इसको वाइंड अप करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, ठीक है ना? स्कूटर इधर लाओ एसी वाला। तो यहाँ पे स्कूटर के लिए एसी, वहां पे स्कूटर के लिए एसआर था, यहाँ पे एसी है। देन इधर से वाई के लिए इट्रियम, लाओ में लांथनम, एसी में। तो स्कूटर इधर लाओ एसी वाला, तो क्या क्या मिल गया? स्कूटर के लिए स्कैंडियम, इधर के लिए इट्रियम, लाओ के लिए लांथनम, एसी के लिए एक्टिनियम। सबको सुनाई दिया? Yes, sir. Sir. ओके, हाँ। हाँ तो सर। मेरे साथ बोलो। अच्छा, ये स्टेटमेंट को याद करो, स्कूटर इधर लाओ एसी वाला। ओके, तो स्कैंडियम बोलो मेरे साथ। स्कैंडियम, Scandium, Scandium, लांथनम, Yttrium, Yttrium. देन लांथनम, Lanthanum. Lanthanum, लांथनम, देन एक्टिनियम। Actinium. अच्छा, आज के लिए हम इतना तक ही पढ़ेंगे, और बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, है ना? तो क्योंकि मुझे भूख लग रहा है, हाँ? तो खाएंगे हम, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? तुम लोग भी अपना नाश्ता वास्ता नहीं किया होंगे, जाके कर लो। और तुम लोग ये ग्रुप में जिसको अगर कोई प्रॉब्लम रहा होगा कि सर मुझे सुनाई नहीं दिया, ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा नेट पर चेक कर लो, है ना? और बाकी जो इसका रीशेड्यूल टाइम, कल का क्या टाइम होगा, मैं आज पहले सेंड कर लूंगा। कल एक्चुअली मैं थोड़ा और कुछ प्लान कर रहा था, इसलिए रात को लेट हो गया, मैंने मैसेज भेजा। तो आज मैं जल्दी भेज दूंगा, दोपहर को भेज दूंगा तुम्हें, है ना? टाइम और उसका आईडी पासवर्ड भेज दूंगा। क्लियर हुआ? हाँ जो सर। भी तुम्हारे मन में है, अगर डाउट है, मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, या तो ग्रुप में भी कर सकते हो, या तो है ना? ठीक है। हाँ क्लियर सर। हुआ? मैं Yes, ये sir. एक्सपेक्ट कर रहा हूँ Yes, कि sir. थोड़ा बहुत मैंने तुम्हारे मन में इंटरेस्ट क्रिएट किया, मैंने, मुझे लग रहा है। अभी तुम अपना जो फीलिंग से मेरे साथ शेयर करो। हाँ ठीक। क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ सर, ओके, तो अभी मैं साइन आउट कर रहा हूँ, एंड ऑफ मीटिंग। तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें बताया जाएगा, और तुम्हारे कोई दोस्त अगर चाहते होंगे क्लास करने के लिए, वो आ सकते हैं, उनको बोल के ऐड कर सकते हो, या तो मुझे नंबर शेयर करने से मैं ऐड कर लूँ हाँ ठीक है। वो ग्रुप में, मतलब वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है, फिर मैं तुम्हें वो उनके पास ऑटोमेटिकली। हाँ सर। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, जो भी हुआ अपना कमेंट्स जरूर करना। हाँ सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome.